ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ بتائیے آپ کی رائے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمیرہ بخاری، اور ساتھ موجود ہیں طاہر علی صاحب۔ اور بات جیسا کہ طاہر صاحب ہو رہی ہے، آج ناظرین کی رائے بھی شامل ہو رہی ہے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے دورے کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ کوریج جیسا کہ وینس ٹی وی کرتا رہا، تجارت پر بات ہوتی رہی، تعلیم پہ بات ہوتی رہی، صحت پہ بھی بات ہوتی رہی، اقتصادی شعبوں کے ساتھ ساتھ ثقافتی تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی، اور دیکھا جائے تو برطانیہ اور پاکستان کے بہت اچھے دوستانہ تعلقات ہیں۔ آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں ان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے دورے کتنے مفید ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ آئی تھنک پرسنل میری رائے ہے کہ ہم ہر کنٹری کے ساتھ دوستی کریں، ہر کنٹری کے ساتھ انکلوڈنگ اسرائیل۔ تو میں تو بڑا اوپن ہوں، اس میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا ہے، اس کے بعد ملک اور ریلیجن بنتے ہیں، تو وی مسٹ ٹریڈ ود ایوری ون، ایوری سنگل ون، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، اور کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہمیں دوسرے انسان سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پرسنلی آئی بلیو کہ کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، نیرلی 1.5 ملین پیپل لیونگ ان UK فرام پاکستان آل اوور، اسی طرح 1.6 ملین 7 ملین انڈین بھی ہیں یہاں پہ، بنگلہ دیشی بھی ہیں، یہ سب وہاں ہی ہمارے سب کانٹیننٹ سے آئے ہیں، یہ پہلے ایک ہی ہوتا تھا، اور یہ 4 ملین جو لوگ ہیں یہ اپنے کنٹریز کو کافی فورن ایکسچینج بھیج رہے ہیں، اپنے فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو اپنی کنٹریز میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہم گھر بناتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، جتنی ہماری حیثیت ہوتی ہے ہم وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں پرسنلی آئی بلیو کہ یہ ٹریڈ ہونی چاہیے، لوگوں کو ڈیفینیٹلی انٹریکٹیو ہونا چاہیے، اپنی رائے دینی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اگر جو بیٹھ کے جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کا کام ہی صبح اٹھ کے اس کو بھی گالی دینی، اس کو بھی گالی دینی، اس کو آگ لگا دو، اس کو یہ توڑ دو، دیٹ تھنگ پازیٹیو لوگ کچھ سوچ کے کچھ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے وہاں بیٹھ کے۔ ٹھیک، یہ بہت دلچسپ ایک بات ہے کہ نیگیٹیوٹی صبح ہوتے ہی ایک باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے، تمام نیگیٹو باتیں، اور رات تک یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے جب حکمرانوں کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے لیڈرز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بہتر نہیں ہے وہ، تو کیا ہم بہتر ہیں؟ ہم اچھی عوام ہیں، ہم کیا بہتر ہیں؟ اگر اپنے گریبان میں جھانکا جائے تو کیا نظر آتا ہے، کیا دکھائی دیتا ہے؟ پروگرام میں کال کر کے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے جلاؤ گھراؤ کی اسکیمیں ہر ٹائم بنانا، احتجاج کرنا، ریلیاں نکالنا، نعرے بازی، اور اب سوشل ویب سائٹس پر جس طرح سے باتیں لکھی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں معاشرے میں پھیلاتی؟ آئی تھنک میں آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہم منافق لوگ ہیں، صحیح، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انکلوڈنگ مائی سیلف، میں بھی کئی چیزیں اپنے لیے سوچتا ہوں، دوسروں کے لیے کہتا ہوں نہیں یہ تو غلط ہو جائے، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ کیسے پازیٹیوٹی کیسے آئے گی پھر؟ پازیٹیو یہ ول ٹیک ٹائم، ٹھیک، کیونکہ پہلے میں آپ کو بلیو کرتا ہوں کہ خیرات دینا، چیریٹی کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کی جیب میں سے 1 پاؤنڈ بھی نکل رہا ہو تو آپ کی جان نکل جاتی، نہیں میں کس کو دے رہا ہوں، پھر اس کے اوپر آپ بغیر سوچے الزام لگانا شروع کرتے ہیں، وہ تو چور ہے اس کو پیسے نہیں دینے۔ یہ ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان ایسا بنایا، دینا بڑا مشکل ہے۔ بالکل، آپ نے یہ جو بات کہی، دینا مشکل بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب اپنا آپ پیار یا ایجوکیشن بچوں کو دینا، وہاں کے لوگوں کو تعلیم، وہاں کے اچھی ایڈوائز ہی کرنا، نیگیٹو بات کرنی تو بہت آسان ہے، مجھے 1 سیکنڈ لگے گا کسی کو برا کہنے میں۔ تو جتنے بھی ہمارے اچھے لوگ وہاں ہیں، پاکستان بھرا پڑا ہے اور بہت ترقی کی ہے۔ تمہارا تم وہاں پیدا ہوئی ہو، اور وین آئی واز ینگ، اور ابھی کی چیزیں میں جا کے دیکھتا ہوں وہاں پر، پاکستان ہیز ڈن ویری گڈ۔ اور ہمارے اچھے لوگ آ جائیں، اچھی اور بچے پڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے یور سیلف یو ہیو ڈن، یونیورسٹی گئے ہیں، وہاں پہ ہم میری کوشش ہے آپ جیسے سارے بچے یونیورسٹی جائیں، تو ان کی تعلیم بڑھے گی، ان کی ایجوکیشن ہوگی، ان کو اپنے ملک سے پیار ہوگا، وہ چیزیں بہتر کرنے کی سوچیں گے۔ بالکل ٹھیک، اور تعلیم اور شعور پر بھی بات کریں گے۔ ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں۔ ہیلو جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی اظہر صاحب، کیسے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جہاں تک منافقت کا ایلیمنٹ ہے، یہ ایلیمنٹ اصل میں ری ایکشنری ہے۔ صحیح طور سے ہمارے دلوں میں کوئی ایسی منافقت نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنے ہی ملک کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے ضرور کہ جو یعنی ان چیزوں سے کچھ زیادہ ہی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں جب ساتھ چلتے ہیں تو کرنٹ فلو ہوتا ہے، ورنہ خالی پازیٹیو ہونے سے ہی آپ کچھ تو بعض دفعہ ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں کہہ کے، لیکن حقیقت جو ہے اس سے بھی انکار کو انسان نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے
देखिए अभी हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने जी जी सलीम मंडा वाला जो साहब थे उन्होंने वाला कहा साहब, जी जी कि इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, और उस चीज को उन्होंने लिंक किया हर सिस्टम से, पॉलिटिकल हो, जुडिशियल हो, जो भी कुछ है। और उन्होंने खुद ये बात कही कि अगर इस इकोनॉमिक एजेंडा को डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। अब सवाल ये कि उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? डिस्टर्ब तो वहीं का सिस्टम कर रहा है ना, पाकिस्तान का। जो हम डे एंड नाइट जो कुछ हम देखते हैं वो तो खैर हमको जो कुछ मिलता है वो तो आता है हमारे सामने। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इत्तला गलत है या वो इत्तला गलत है। जो लोग वहां पे रहते हैं वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि हमारी दिन रात की जिंदगी जो है वो क्या है। अभी आप ही के प्रोग्राम पे पहले एक साहब आए थे जिन्होंने बहुत अच्छी एक तजवीज पेश की थी माइक्रो फाइनेंस की, कि समझा आपके जो लोग यानी शॉर्ट, मेरा मतलब एक लो लेवल पर कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वो आए वो करें। अच्छा, तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ये जो लोग हमारे यहाँ पाकिस्तानी हजरात मुकीम है यूरोप में, अमेरिका में, ये इन्वेस्टमेंट का मामला एक बड़े अरसे से चल रहा है, ये कोई आज का नया नहीं है। और हमेशा शिकायत यही होती है कि जब हम, मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहा हाई लेवल पर, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ या जो उसको कुछ उनको मिला वो बड़ा नेगेटिव वे में आया। इसी तरह मैं ये चाहूंगा अपने ताहिर भाई के हवाले से कि आप हमारे हाई कमीशन को इस चीज की बहुत पावरफुल मशवरा दें कि वो एक बाकायदा इस इन्वेस्टमेंट का जो उनका सेक्शन है उसको बहुत ही करीब हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लाएं, सही तरह की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, इंटरेक्शन होना चाहिए बड़े पॉजिटिव वे में। यही हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफिसेज हैं उनमें भी बड़ा इंटरेक्शन होना चाहिए और लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि जिस उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कम्युनिकेशन की है और ट्रस्ट की है। जब तक ये चीज हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी हम अपने मुल्क के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ के तो हम सिर्फ एक बाहर के नुमाइंदे की ऐसे सी बात कर सकते हैं ना। असली टेस्ट जो है वो वहां जाने का है। अब ताहिर भाई ने वहां जाकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है। अब अगर मैं खुद उनका मशवरा जानना चाहूँ कि बताइए कौन से सेक्टर्स हैं कि जिसमें एक आदमी यहाँ से किसी लोअर लेवल पे जाकर इन्वेस्ट कर सकता है सिक्योरली। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू आपका। मेरा ख्याल है कि रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज मच हायर, किसी मुल्क से ज़्यादा बेहतर है, उसकी रिटर्न्स अच्छी है एज लॉन्ग एज आप सोच समझ के जा रहे हैं कि मैंने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं या एग्रीकल्चर फार्म में जा रहे हैं, वहाँ कैटल्स खरीदी आ रही हैं, उसके अंदर ह्यूज प्रॉफिट्स हैं। लोग पोल्ट्री फार्म भी कर रहे हैं वहाँ पर। ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें वर्ल्ड वाइड। मतलब सी फूड वगैरह पे तो बैंड है थोड़ा सा ड्यू टू सम अदर रीजन। मतलब इतनी चॉइसेस यहाँ पर हैं, अगर आप उसको देखें और मशवरा लेके करें, एकदम उठा के चले जाएं और जाके अनप्रोफेशनल लोगों से एडवाइस लेके, क्योंकि वहाँ पे आई एम सॉरी टू से जिनको नहीं पता होता वो कहते हैं जी मैं फलाने मिनिस्टर को जानता हूँ, आप ये इन्वेस्टमेंट कर दें वो कर दें। उसको प्रॉपर तरीके से बेहतर प्लानिंग के साथ जाएं, और क्योंकि आपके पैसे एक दो चले गए और रॉन्ग हैंड में चले गए तो वो बाद में प्रॉब्लम्स ही आती हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान सही नहीं है। पाकिस्तान तो सही है मगर हमने गलत लोगों के साथ कर दी। बिल्कुल, यही फिर बात आती है यहाँ पर, जैसा कि ताहिर साहब आपने पहले भी कहा था, बाशऊर होने की, तालीम याफ्ता होने की, बेहतर प्लान करने की, हर चीज़ को बाकायदा मैनेज करके चला जाए तो ऐसे मसले नहीं हो सकते। देखा जाए तो एक बात आपने जैसा कि कही थी, बहुत मुश्किल अपनी जेब से पैसे निकालना। 10 पाउंड अगर आपके गिर गए, किसी के गिर गए, तो कहा जाएगा हम कुछ बेहतर हो गया, सदका खैरात हो गया, किसी बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन जहाँ किसी गरीब की मदद करने की बात आए या कुछ बेहतर काम करने की बात आए, वहाँ पर 1 पाउंड निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। और अपने आप को अगर बेहतर करके चला जाए तो शायद पॉजिटिविटी आएगी। जैसा कि आपने कहा था नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ चलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए बेरोजगारी से लेकर लोगों की तालीम से लेकर इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं कि लगता है कि अब थोड़ी मुस्बत सोचों में कमी आ रही है। मैडम वहाँ पर पॉपुलेशन जिस तरह ग्रो हो रही है उस तरह हमारी नीड जो हैं वो हम पूरी नहीं कर सक रहे। ठीक, महंगाई भी आ रही है। अब आप देखें 147 के करीब रुपीस हो गया है अगेंस्ट स्टर्लिंग। तो ये जो लोग आए हुए थे पाकिस्तान से वो अगर 50,000 रुपए की सैलरी ले रहे हैं या 10,000 की ले रहे हैं तो स्टर्लिंग उनके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही। तो महंगाई वहाँ पर उनकी सैलरी जो है अगर किसी की
10,000 रुपए और बिजली भी बढ़ गई है, पेट्रोल तो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का पेट्रोल बढ़ रहा है, तो हम उस तरह हम कंपेयर करते हैं किसी और। यहाँ पर हम लोग डीजल जो है £1.50 a लीटर है, ठीक, वी आर पेइंग इन दिस कंट्री, सही, डीजल हम पे कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है, पाकिस्तान रेट तय नहीं कर रहा होता पूरी दुनिया के, सही, तो उसके साथ साथ फिर हम काम, हमारे जो लोग हैं बच्चे वहाँ पर वो काम नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर रहे। एक सिंगल पेरेंट्स होता है, वो काम कर रहा होता है, उनके 5-6 बच्चे हैं और उनको हर को कपड़े लेके देने हैं और उनकी जब शादियां करनी, ये करना, तो ये इश्यूज हैं हमारे। और आहिस्ता आहिस्ता, और अल्लाह ताला, जो मैंने अभी रिपोर्ट देखी है कंपेयरिंग कर रहा था इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान इज मच बेटर। मुझे, क्योंकि जब हमारे पास ना तो कोई इन्वेस्टमेंट जाती है वहाँ पर, और जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बड़े लेवल पे ना, कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, दे प्लानिंग फॉर 10 years अहेड। हम कहते हैं कि आज ही सब कुछ हो जाए, विच इज गवादर है और पूरा बेल्ट है बलूचिस्तान का। अल्लाह ताला हमें बलूचिस्तान के बेल्ट को ठीक करे एंड विल इम्प्रूव। बिल्कुल, मादनी वसाइल जितने वहाँ पर हैं, कुदरती वसाइल, बस उनसे इस्तेफादा करने की ही ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अभी उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो आपके मेहमान बैठे हुए हैं, क्या नाम है इनका? जी, आप अपना नाम बताइएगा। कौन साहब हमारे साथ? मैं इफ्तिखार डार बोल रहा हूँ। इफ्तिखार साहब हमारे साथ? मेरा नाम ताहिर अली सर। ताहिर अली साहब बैठे हुए। ताहिर साहब? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, भाईजान आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बता रहे हैं, आपका बड़ा अच्छा मशवरा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये डेलीगेट जो आए हुए हैं ना, जी जी, इनसे अगर आप रिक्वेस्ट करें कि दरअसल प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो हम लोगों को इंफॉर्मेशन देती नहीं है। बिल्कुल सही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं है कोई। नहीं, इंफॉर्मेशन तो है, हम लोग मांगते नहीं है। प्लीज आप हाई कमीशन को लिखें, मेरा ख्याल है उनका कमर्शियल सेक्शन है, उनको आप लिखेंगे तो उनको काम करने को हम कहें। अगर वो नहीं मानते तो हम पाकिस्तान के जो कमर्शियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो लोग हैं, हम उनको लिखें। हम लोग जो हैं डर के चुप हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज अपने राइट्स के लिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ 6-7 साल से, कि वी मस्ट, कोई भी कंप्लेन है उसको हम लिखें, उसको एड्रेस करें, उनको बताएं कि यार हमारा PIA से वापसी में आते हैं हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हमें जाते हुए प्रॉब्लम हो रहा है, या हमारी कोई ऐसी चीज हुई है, उस चीज को एड्रेस करें, उसको ईमेल करके बताएं, एक दफा लिखा जरूर जाए। सही, हम तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को तो बताएंगे, लेकिन जहां पर बताना चाहिए वहां अक्सर हम गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल हल नहीं होते। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो जी ताहिर साहब, हेलो जी मिस सर, क्या हाल है? ठीक हो? मैं गुरबचन मैनचेस्टर बोल रहा हूँ जी। गुरबचन सिंह साहब, सब ठीक ठाक। मैं दसिया कि सानू सोच समझ के भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बड़िया सोहनिया इन्वेस्टमेंट उत्थे हैगियां ना, लेकिन दूजिया ते ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक दफा एक राजा सी शिकार करन निकलिया ना घरों, ते सवेरे सवेरे ओनू एक आदमी मिलिया, वो सारा दिन शिकार करता रहा, तो उस बेचारे नो ही कुड नॉट फाइंड एनी शिकार। तो बेचारा बड़ा अपसेट होया, तो कहंदा ये मनूस आदमी जड़ा मिलिया ना, इस करके मेरा अज कोई शिकार नहीं मिलिया। ये मनूस बहुत आदमी सी। ओनू सवेरे दरबार च बुला के ना कोड़े लाए जान, ओनू बुला लिया बे तू मनूस मिलिया, ते सवेरे मैं शिकार करन गया, कोई शिकार नहीं मिलिया। ਉਹ ਮਨੂਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਨੂਸ ਹੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂਸ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬਲੇਮ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਜਸਟ ਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। बिल्कुल सही गल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बहुत शुक्रिया। गुरबचन इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ ऑल द टीवी चैनल, और बहुत अच्छे उन्होंने लेसन पर मबनी हमें जो सुनाई बात। वही मैं हम शुरू में जब कह रहे हैं ना कि हम किसी और पे डाल देना चाहते हैं बहुत आसानी से ना, वो आदमी वो ऐसा है, वो रॉन्ग है, वो अच्छा नहीं है, तो भाई अच्छा नहीं है तो अब उसको 5 साल बर्दाश्त करो। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आप देखते हैं उनकी क्या राय है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। काफी देर से मैं होल्ड किया हुआ। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी जी, आप आ गए, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी सर। कौन साहब हमारे साथ हैं?
हेलो जी। जी आ रही अपना आवाज। नाम बताइएगा। मैं अख्तर फरमान बोल रहा हूँ क्वेंटली से। ठीक।